Hello. Am I audible? Aditya? Yes, ma'am, you're audible. ओके बस बिल्कुल नहीं आ रही मेरे पास। I hope screen is visible to you. Yes, ma'am. Okay, so this is our next topic that is not mentioned in the syllabus, but it is an essential part of grammar. And for correction of sentences, again, certain sentences are related to the errors related to this subject verb agreement. It is necessary for us to go ahead with this topic, though it is not there, I repeat. It is not mentioned in the syllabus. Okay? So, first of all, we have to understand the basic rule. Basic rule is singular number takes first form of the verb with s or es, whereas plural number takes first form of the verb without s. इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं nouns add an s to the singular form, but verbs remove an s from the singular form. ये अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर नाउन के साथ एक एस लगा हुआ है वहाँ वर्ब के साथ लग जाते हैं, जहाँ नाउन में एस नहीं है, हम प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. So when we are talking about singular nouns that don't take s with them, verb takes s with them. ठीक है, इन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ आप s लगाते हैं, where nouns are there with s, verb is without s. यानी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं as it is. For example, the dog chases the cat. Now this noun is without s, it means it is singular, so it will take first form of the verb with s or es with it. In this example, dogs. So in noun, s is there, that's why from verb we have removed s. Is it clear to you? ये बहुत बेसिक सा रूल है जो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है. S or ES. Singular number, third person takes S or ES with the verb, and all other take first form of the verb without S or ES. तो इस रूल को मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. You can go ahead with next one. First rule is a phrase or clause between subject and verb does not change the number of the subject. For example, you can see here a can of lemon beans sits on the shelf. Now, this phrase doesn't change the number of this subject. Yes, this is the subject can. The number of this subject is not changed because of this phrase, because this phrase is in plural number, but it is not changing the number of this, so verb is according to this one. So what does this rule say? It says that if there is a phrase between the verb and the subject, the number is not changed and the verb is used according to this subject only. Okay, so says the women who went to the meeting were good.
Who went to the meeting? This is a clause. But again, it is not changing the number of noun or number of subject here. It is in plural, so verb is also according to that subject. That is plural verb. Verb is verb. Next one is indefinite pronouns as subject. Sometimes we have indefinite pronouns. Indefinite pronouns are each, either, neither, one, no. Where we are not definite, we are not sure about the person with it. एक की बात कर रहे हैं, 10 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, या वो बॉय है, गर्ल है. We are not concerned about gender as well. These are indefinite pronouns. So in case of these indefinite pronouns, we always use singular verb. Each does a good deal of work around the office. So each is singular as well as verb is singular. Each does a good deal of work around the office. Everybody likes. Everything is. Everyone is. Something has. Somebody has. Someone has. So it always takes singular form. Plural indefinite pronouns. Some indefinite pronouns are plural as well. Examples: several, few, both, many. So when these are the subjects, any of these is the subject, verb is always plural. Both do a good deal of work around the office. अब दोनों को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. Here the subject was each and here the subject is both. Both have indefinite pronouns, but one is singular and another is plural. Third rule says some indefinite pronouns may be either singular or plural with uncountable. यूज सिंगुलर विद काउंटेबल यूज प्लूरल. कुछ ऐसे हैं जिनमें आप श्योर नहीं हैं कि आप कितनी बात Ma'am, कर some रहे हैं, students are singular है waiting in the प्लूरल है, waiting room. क्योंकि उसके साथ जो नाउन आगे आता है दैट नाउन Ma'am, इंडिकेट्स. some students are in the waiting room. हेलो बेटा, आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की. Ma'am, students are waiting in इससे the पता waiting चल रहा room. है कुछ बोल रहे हो. एक मिनट, लेट मी चेंज इट. अब बोलो जरा. मैम आवाज आपकी आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी. अब नहीं आ रही, पहले नहीं आ रही थी. मैम मैम पहले नहीं आ आ ही रही नहीं थी. रही है जब से स्टार्ट हुए. जब मैंने पूछा था ऑडिबल हो तब तुमने कहा कि हाँ ऑडिबल है. ऑडिबल तो आप हो. अभी ठीक है. अभी ठीक आ रही है. हाँ जी. Yes, ma'am. Ma'am, Can I waiting room में continue? students हैं, उनको इन कर लो. हाँ बेटा, मैं कर रही हूँ उनको, लेकिन अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ. यस मैम. एक बार शुरू से बताऊँ आपको. नहीं मैम, उतना तो समझ में आ गया. इतना समझ में आ गया है? श्योर. यस ये मैम. जो सम वाले रूल्स हैं, जो इंडिफरेंट प्रोनाउंस से रिलेटेड रूल्स हैं, ये आपको बहुत ठीक, इनकी प्रैक्टिस बहुत ठीक से करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, ये अलग तरीके से यूज होते हैं. ठीक है. इनमें से सम ऑफ द शुगर इज अनकाउंटेबल. So when uncountable noun is there, we have to use singular verb. लेकिन अगर इसके साथ some कोई countable noun use होगा, for example, some people. अब people, these are countable. Some people were there. Plural verb आप use करेंगे. ठीक है? So you have to take care of these things. मैं इसको डालती हूँ तो ये third is compound subjects. Compound subjects, when two subjects are joined by and. Two
सिंगुलर और टू प्लूरल सब्जेक्ट, अगर वो अपने आप में प्लूरल है तब तो प्लूरल होगा ही, बट समटाइम्स वी यूज टू सिमिलर सब्जेक्ट्स joined by and. In that case, they are two, so they are always plural. So verb used is plural. A pencil and an eraser make writing easier. A pencil and an eraser. Two subjects are joined by and, so they will take plural verb. ये तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं जो आप इनको समझ सकते हैं। थोड़ा आगे इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट इज विद कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट। अब यहाँ पर आपके पास दो सब्जेक्ट्स थे विच वर जॉइंड बाय एंड, और एंड से जुड़ते ही दो सब्जेक्ट बन जाते हैं, प्लूरल बन जाता है, सो वी आर टेकिंग प्लूरल वर्ब। बट इन दिस where we join two subjects by or not, the verb is always according to the subject near to the verb. For example, this one. Neither the director nor the actors are following the lines closely. In this sentence, two subjects are joined by not, director and actors. These are the two subjects. These are joined by the conjunction not. This is verb. तो verb के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? Actors. This is plural. That's why we are using are. अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, neither the actors nor the director. अब the subject near to verb is singular, so verb should be singular. Neither the actors nor the director is following the lines closely. और इस तरीके के कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, नीदर द एक्टर्स नॉर द डायरेक्टर अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। इन फर्स्ट इट इज प्लूरल, इन सेकंड सेंटेंस इट इज सिंगुलर फॉर्म। Next is inverted subjects. ये कोई बता सकते हैं कैसे हटेगा यहाँ से? एक मिनट इसको करिए। मुझे नहीं कर रही है बिल्कुल भी। कोई नहीं, ऐसे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स मस्ट एग्री विद द वर्ब। Inverted subjects. Waiter, there is a fly in my soup. There are 4 flies in my soup. How are the relatives taking the bad news? यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड पर नहीं जाना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, यू हैव टू गो फॉर दैट। इन दिस सेंटेंस वेटर इज नॉट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज fly, ठीक है। So according to fly you have to use a verb, and in this sentence flies it is plural, that's why are. Again in this sentence relatives is the subject, it is plural in number, so are. So inverted subjects must agree with the subject, you should not go for the first word. कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। व्हाट इज द रूल फॉर कलेक्टिव नाउन्स? इफ कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एज अ यूनिट, इफ यू रेफर टू दीज कलेक्टिव नाउन्स एज अ यूनिट, they take singular verb,
But if they are the members or individual members are referred to collective nouns, in that case, it is always plural. For example, the jury has awarded custody to the grandmother. The jury has collective decision. That's why we are using this jury as a collective noun. So it will take similar verb. लेकिन अगर हम जूरी के अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स इन द जूरी, इन दैट केस वी विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. The jury members have been arguing for 5 days, or the jury have been arguing for 5 days. अगर आप members नहीं भी लगाते तब भी आप क्लियरली इंडिकेट करें द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी हैव बीन आर्गिंग. वो चार पाँच दिन से 5 दिन से उनकी बहस चल रही है. किसकी बहस? ऐसा तो नहीं कलेक्टिव ज्यूरी एक साथ किसी और के साथ बहस कर रहे हैं. ठीक है, दे themselves, दे among themselves, आपस में वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं टू कम टू अ फाइनल पॉइंट. So the jury have been arguing for 5 days. We are talking about members, so it is plural. Verb is always plural. Then titles of single entities. Titles of single entities. किसी बुक का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंट्री का, उसमें बेशक आगे एस लगा हो या कहीं उसमें लास्ट वर्ड में एस हो या कलेक्टिव नाउन में कहीं भी एस हो, बट इट इज ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन. दैट्स व्हाई वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. द ग्रेप्स ऑफ रॉक, it is the title of the book, so it will take singular verb. The grapes of Prague takes a long time to read. ये आप पहले कर चुके हैं. कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे. तो ये सारा आप नाउन्स में कवर कर चुके हैं. I should yes, with one of those people who use who. अगर आप इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, Anna is one of those people who like to read comic books. Ravi is one of those people who like to what? Complete the sentence. Who like to? Who like to be regular. Rama is one of those students who like to bunk the classes. So one of those. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वन आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये जो मेन सब्जेक्ट आता है प्लूरल नाउन, ये आपका सब्जेक्ट नहीं, सॉरी प्रॉपर नाउन, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है. आपका सब्जेक्ट क्या है? हु. और यहाँ पर वन ऑफ दोज. वन ऑफ दोज से आपको इट मीन्स ये जो कंबाइंड आपका वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज बुक्स, वन ऑफ दोज पोएम्स, वन ऑफ दोज कंट्रीज, वन ऑफ दोज सिटीज, एनी नाउन मे बी देयर. बट इफ वन ऑफ दोज इज देयर, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. क्योंकि हम यहाँ पर इन सब को रेफर कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आउट ऑफ दीज. बट अगर इसमें सिर्फ ओनली वन आप लगा देते हैं, इन दैट केस इट टेक्स सिंगुलर वर्ब.
ओनली वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक्स टू रीड कॉमिक बुक्स, क्योंकि अब ये ओनली वन चला जाता है सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द मेन सब्जेक्ट, मेन नाउन। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर चुके हैं। नंबर ऑफ हाँ, ये आप देख लीजिए इसको ठीक से। मैनी ए, if many is there, it is always followed by singular noun and it will take singular verb. Many a child, many a man, many a student, many a manager, not many a managers. लेकिन अगर आप many स्टूडेंट्स करते हैं, many बॉयज करते हैं, many प्लेयर्स करते हैं, तब ठीक है। In that case, you will use plural verb. लेकिन अगर many a is the subject, शुरू में जो आगे many a आता है, many is followed by singular noun and it will take singular verb. आप many a के बाद plural verb use नहीं करते, ठीक है। अभी आज मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजा था, देख लिया आप लोगों ने? हम प्रैक्टिस शीट हाँ, कर दी सबमिट। जो आज भेजी थी वो कर दी है। हाँ जी। वेरी गुड। किस किसने सबमिट किया आज कर दी? रेज योर हैंड। आदित्य, प्रियांशु, गुड। ओनली 2। वेरी गुड आदित्य एंड प्रियांशु, you get extra points for this activity. थैंक यू मैम। Remind me at the time of assessment. ओके मैम। ये किसका है? Not happening. क्या नमिकांश? Okay. Now we can go ahead with two things. One is preposition, second is one word substitution. What would you like to do? One word substitutions or prepositions? बताइए जल्दी से। What would you like to do? Prepositions or one word substitutions? हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको बहुत जल्दी आंसर देना होगा विद इन 30 सेकेंड्स। हम ट्राई करते हैं। ओके।
Very simple. An examination of a dead body to determine the cause of death. हम एक बार रिपीट करना. An examination of a dead body to determine the cause of death. Autopsy. Examination of a dead body. मैम पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी? Yes, postmortem. क्योंकि ऑटोप्सी बेटा एक पर्टिकुलर चीज की होती है बस. ठीक है. ये है कॉज ऑफ डेथ. तो ये पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन है, दैट इज पोस्टमार्टम. ओके. नेक्स्ट इज killing of a large group of people. Killing of a large group of people. Genocide. Genocide. Very good. Next is something that cannot be corrected. Something that cannot be corrected. मैम शायद इनकरेजिबल है. Yes, incorrigible. Good. Next is fear or hatred of books. Fear or मैम रिपीट hatred करना. of fear or hatred of books. हम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल. बेटा fear of books. Fear of books. बिब्लियोफोबिया होगा क्या मैम? Yes, it is bibliophobia. It is bibliophobia. Or the person who hates books. बिब्लियोफोब. No. The person is called bibliophile. ठीक है? Bibliophile. A person who hates book. बिब्लियोफाइल क्या? हाँ. Or the person, the person who loves bibliophile. The person who loves the books. The person who Yes मैम. steals the book. The person who steals the books. कुछ होते हैं ना बुक चोर भी. मैम क्लेप्ट आएगा ना, बिब्लियोक्लेप्ट. Yes, that is biblioclept. Okay, a form of government with a monarch at the head. A form Monarchy. of government, yes, monarchy. And the system in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives. Government by the officials. कई बार ये इस फॉर्म में भी आ जाता है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स. ब्यूरोक्रेसी. मैम फिर डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंस क्या हुआ? बेटे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. और या आप इसको और सिंपल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. अच्छा मैम समझ में आ गया. जिनको लोगों ने चुन के भेजे हैं, अगर वो रूल करते हैं दैट इज डेमोक्रेसी. लेकिन अगर उनकी जगह कुछ ऑफिशियल्स डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, मीन्स एक्चुअल गवर्नमेंट इज रन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी.
And the system of the government where only one person has absolute power. ये सब आ चुके हैं इससे पहले एग्जाम्स में, इसलिए मैं ये सब आपसे पूछ रही हूँ, प्रैक्टिस उन्हीं की ज़्यादा करा रही हूँ. A system of government where one person has absolute Dictatorship. power. No. वो तो तानाशाही की वो अपनी चलाते हैं, जहाँ पर एक के पास पूरी पावर एक के पास होती है, डिसीजन वही लेता है. That is autocracy. ठीक है? That is autocracy. Next is जो कि आ चुका है पहले, a form of government in which power is held by the nobility. इनको दोबारा बोलना. Means a form of government in which power is held by the nobility or the people of highest rank. Not officials, people of highest rank. That is aristocracy. ठीक है, चलिए. A self-governing country or region, a self-governing country, ये तो बहुत सिंपल है, सभी को आता होगा. A self-governing country or region. ऑटोनोमस. यस, ऑटोनॉमी. आप उसको एज अ सिस्टम बोलेंगे, ऑटोनॉमी. ठीक है, गुड. नेक्स्ट इज ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स occupied by a community of monks living under religious vows. A building or buildings occupied by a community of monks. इतना काफी है. Monastery. Monastery. Good. चलिए. A place where coins, medals or tokens are made. A place where coins, medals or tokens are made. क्या हुआ आज बाकी सब लोग शांत हैं? हाँ बोलो. Mint. Yes, that is mint. Mint is the place where we make coins, medals or tokens. Next is a small shelter for a dog. Kennel. Kennel. A storehouse for threshed grain. Greenery. Granary. Good. Next is an institution for the care of people who are mentally ill. Asylum. Asylum. Good. Next is a keeper of a museum. Keeper of the museum. Curator. Curator. Good. Next is a series of stars. Constellation. Constellation. A family of young animals. A family of young animals. Brood. That is brood. ये आप लोग खुद बता रहे हैं या सर्च कर रहे हैं जल्दी से? मैम इतनी मैम जल्दी सर्च आवाज कैसे नहीं आ होगा? रही है, वरना तो मैम मेरे को सारे आते हैं.
बहुत अच्छी बात है अगर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पूरी एक लिस्ट भी दूंगी, जो लिस्ट सबसे अब तक आ चुकी है, ठीक है, एग्जाम्स में जो अब तक आ चुके हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वो सभी मैं आपको दूंगी, उनको एक बार देख सकते हो। उससे फिर उसी फॉर्म में उससे फर्दर जो भी उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो अब तक आ चुके हैं उनमें से ही है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम a number of words have been repeated. काफ़ी सारे फ्रेजेस, काफ़ी सारे वर्ड्स बार बार वो रिपीट होते रहे हैं, तो बट कोई गारंटी नहीं है कि उन्हीं में से फिर रिपीट होगा, कोई नया भी हो सकता है। सो यू शुड गो थ्रू these words completely thoroughly. Next is आपका फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, ठीक है। अब इस पे हम आगे थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस और करेंगे सेंटेंसेस की, जो मैं आपको सेंटेंसेस गूगल क्लासरूम पे मैं आपको भेजती रहूँगी रिलेटेड टू इंडियनिज्म, ठीक है। इंडियनिज्म, प्रपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको वन बाय वन आपको सेंड करती रहूँगी, आपको उनको कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, प्लस करेक्शंस उसके बाद आपको मिलेगी जब आप सभी को सबमिट कर देंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी या फिर हम किसी एक क्लासरूम को डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रही कि वो रूल क्यों उसमें एप्लीकेबल है, क्यों हमने उस रूल को लगाया है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट वी विल गो अहेड विद थर्ड यूनिट। ग्रामर की आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस शीट्स मैं जो आपको दूंगी उसके अलावा भी आप जितनी भी आपके पास ग्रामर बुक्स जो भी है उससे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप करते रहिए। अब टर्म का मुझे भी नहीं पता है कि जब शुरू होंगे देखेंगे, उससे पहले आपका एक छोटा सा क्लास टेस्ट होगा जिसमें पूरा का पूरा वो फॉर्मेट जिसमें अभी तक एग्जाम्स होते हैं, आपके सेशंस होते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर का वही पैटर्न रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि वो शॉर्ट रहे जिससे कि आप उसको एक ही क्लास के टाइम में कंप्लीट कर पाएँ। वी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर इट वुड बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर मिड टर्म, लेकिन
लेकिन फिलहाल हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ग्रामर की करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इट डजंट मैटर। तो फर्स्ट सेशन का यानी आपका मिड टर्म का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का जो अब तक रहा है, उसी पैटर्न पे आपको एक क्लास टेस्ट मिलेगा नेक्स्ट वीक। एंड आई थिंक उसको हम वेडनेसडे रखेंगे, ठीक है। अगर आपका वेडनेसडे कोई और गेस्ट आता है तो प्लीज़ वहाँ पे आप क्लियर कर दीजिएगा कि वेडनेसडे ऑलरेडी आपका सीएस का एक शेड्यूल है। ओके, सबसे पहले जरा एक बार अपनी अटेंडेंस करवा दूँ। आदित्य, प्रेजेंट मैम। आशिमा, अभिनव, प्रेजेंट मैम। आदित्य रावत, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा, अनुराग, अनुष्का, आरुषि, आर्यन, आस्था, आयुष, चैतन्य, चंचल, धूपम, प्रेजेंट मैम। धृति, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम धृति। लगा दिए है वो एक्चुअली आकांक्षा भी वेटिंग रूम में उसको एंट्री देना। दिव्या, उसको एंट्री देना। गौर सुंदर, हर्ष गुप्ता, प्रेजेंट मैम। हर्षित चौहान, प्रेजेंट मैम। हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, जय, प्रेजेंट मैम। कबीर, कार्तिक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। कार्तिक गुप्ता बी, कार्तिक नेगी, प्रेजेंट मैम। कुलभूषण, कुलदीप, मनीष, मान्या, मुदित, मुस्कान, नमित, निहारिका, प्रेजेंट मैम। निकुंज, नितिन, प्रेजेंट मैम। नितिन। नितिन प्रेजेंट मैम। हाँ बेटा लगा दिए। निकुंज, सॉरी पंकज, प्राची, प्रियांश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रियांशु प्रेजेंट। प्रियांशु, एक मिनट बेटा, मीटिंग में कहाँ हुआ? प्रियांशु तो नहीं, ठीक है, आपको बड़े नाम, ओके। रजत, राजीव, ऋषि, प्रेजेंट मैम। साहिल, सना, प्रेजेंट मैम। शिव, शिवम, शोएब, प्रेजेंट मैम। सिद्धांत, स्नेहा, सोनिका, प्रेजेंट मैम। मैम स्नेह प्रेजेंट। सोनिका, तक्ष, तरुण, योगेश, जीशान। ओके, अब आप जरा एक बार मुझे जल्दी से ये बताइए, अभी तक जो आपने जितना भी सिलेबस अभी तक किया है उसमें किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट टू यूनिट्स हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है किसी में? टीचिंग मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम है
If you want a change in teaching method, we can change it. If any particular topic, specific topic is not clear to you, we can go Yes, again ma'am. to the entire topic. Yes, better. Yes, Bolo. Ma'am, can you check my attendance, Akanksha? हाँ कांक्षा, आप लगा दिए आपका अटेंडेंस। अब बाद में Okay. आए थे, फिर आप निकल चुका था तब तक। Yes, ma'am. एक बार आप ठीक से देख लीजिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, प्लीज टेल मी। अपनी प्रॉब्लम्स को मार्क करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिए उनको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको फिर बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ओनली लिटिल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सब कुछ आपको आता है, मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया इसमें। ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ की हैं, या कहीं ना कहीं आप इनको पहले से जानते थे। सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन था। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकते हैं, और अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो शायद इनको और इफेक्टिवली हम लोग कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफलाइन क्लास में जब हम कर रहे होते तो सामने आती हैं। एनीवे, अभी भी कोशिश यही कि थोड़ा सा ठीक से सब टॉपिक्स हो जाएं, लेकिन आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड गो थ्रू दीज टॉपिक्स थॉरोली, ट्राई टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम एरियाज, नोट डाउन दैम एंड डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है? एंड प्लीज कंटिन्यू with your practice of grammar rules, sentences, vocabulary, Indianism, etc. If you want to say anything or ask anything, you may, or you can leave the meeting and join your next class. ओके मैम। मैम Yes, beta. मैम मुस्कान ने मेरे को मैसेज किया, वो बोल रही है कि वो क्लास में थी पर उसकी अटेंडेंस नहीं लगी, अभी उसका इंटरनेट डाउन है। स्क्रीनशॉट किसने लिया है अंश? मैम पता नहीं, मैं पूछ लूंगा। चलो देखो एक बार उसमें पूछ के स्क्रीनशॉट किसने लिया था, स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है? ओके मैम। Okay. Thank you. See you in next class. थैंक यू मैम। Take care and stay safe. Record.